Now, the last lecture of this series of this concept of pharmacology regarding important aspects to understand the and pharmacodynamics. Now, in this lecture, basically, we will concentrate on the pharmacodynamic aspects up till now, which we have not touched. And first one is the transmembrane signaling. Basically, it is a modification of the receptor activity when any drug, any ligand binds to it and activates it. So modification in the activity by binding the drug to activate it is the transmembrane signaling. There are basically 5 types of signal mechanism, and each type uses a different strategy to overcome the barrier which is posed by the lipid bilayer of the plasma membrane. Now we will see. Now the 5 types of transmembrane mechanisms are: first one is the intercellular receptors. The ligand or the drug molecule is crossing the membrane by lipid layer and entering into intercellular site, which may be in the cytoplasm or in the nuclei, in the nucleus. So the receptor, R stands for receptors. So molecule is crossing membrane and going to the site intercellular. Second is transmembrane, present on the membrane of the cell. It may be either tyrosine kinase, or it may be cytokine receptors, or it may be ligand gated channels, or it may be G-linked protein. The details of all these we will study inshallah when we will study the transmembrane mechanism in the pharmacodynamics. So up till now you should remember only that there are 5 basic transmembrane signal mechanisms. Usually when ligand bind, the channel may open, and channel opening occurs on a millisecond time scale. Here usually channel operated receptors are nicotinic type of acetylcholine, GABA receptors, glutamate receptors, or serotonin, especially 5-HT3 types of receptors. These are involved in opening of different types of ionic channels. It may be sodium, it may be chloride, etc. In the last, we have seen G protein linked receptors. Usually there are some targets. Usually those are the effectors for G protein. These are basically to control the different aspects of the cell function. इनमें 4 important है. First one is adenylyl cyclase. So this adenylyl cyclase is especially for the cyclic AMP formation. Second target or a factor which is involved in G protein, it may be phospholipase C. ये 2 किस्म के इसमें होते हैं, that is for anisotyrene phosphate और diacyl glycerol, DAG. इन दोनों की formation is through phospholipase C. Third target is the ionic channels, especially for the calcium and the potassium channel. And fourth one is the protein kinase system. This system actually controls the activity of many signaling pathways, controlling especially cell growth and cell proliferation or smooth muscle contraction, etc. Here usually protein kinase system is involved. Now let's have some understanding about different terminologies involved in receptor binding of the drug or the ligand. First is affinity. What is affinity? Remember, it depends upon the chemical structure of the drug. So it is a chemical property of a drug to show the specific attraction for binding to particular tissue receptor. Due to chemical specification, few drugs may be having more affinity to go to cardiac muscle and will bind there. Some other may be having more affinity to bind with skeletal muscle, they will go skeletal side.
Some are having more for the brain tissue. They will cross the blood-brain barrier and enter into brain and will go to the site of brain tissue and so on. So affinity is the attraction actually, ठीक है, specific attraction of the drug molecule. क्यों है? Due to specific chemical structure, chemical property. While efficacy, ये तो होगी बाइंडिंग करने के लिए जो उसकी अट्रैक्शन है, जो चाहता है टू बाइंड. सेकेंड इज बाइंडिंग के बाद efficacy is the capability of that drug. Again, it is due to specific structure to produce the maximum possible effect through receptor activation. उर्दू में जब कहते हैं ना कि अपनी सलाहियतों का भरपूर इजहार किसी भी चीज का या ड्रग का है, तो एफिकेसी उस ड्रग की जो भी सलाहियत है उसका भरपूर इजहार करना एफिकेसी है. और अगेन ये भी डिपेंड उसके केमिकल स्ट्रक्चर पे कर रही है. जैसा केमिकल स्ट्रक्चर होगा वैसी एफिकेसी होगी. मेजॉरिटी की फुल होगी, फुल से मुराद अमूमन बिल्कुल वैसे ही जैसे कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल हमारे पास लाइगेंड बॉडी के अंदर मौजूद होता है. अब मैं यहाँ मिसाल देता हूँ. एसिटाइलकोलिन हमारे अंदर नेचुरल बन रही है, उसकी जो भी एक्टिविटी है उस लेवल की एक्टिविटी अगर बाहर से दी गई हुई लाइगेंड जिसको आप ड्रग कहेंगे वो पैदा करेगी, उसकी एफिकेसी उसके बराबर हो पाएगी, इसकी फुल एफिकेसी. अगर उससे कम होगी, ठीक है, कि वो भी ओरिजिनल देखते हैं, हम कहेंगे ये फुल नहीं है, ये पार्शियल है. ठीक है. इसी तरीके से हमारे पास अंदर मौजूद हिस्टामिन है, एपिनेफ्रिन, नॉरपेनेफ्रिन, ओपियाइड, एंडोजेनस पेप्टाइड वगैरह वगैरह, all are producing their own specific physiological or biochemical function or the activity. So अपने अपने से रिलेटेड जिसकी जितनी जितनी होगी, अगर उतनी होगी हम उसको कहेंगे फुल एफिकेसी वाले ये ड्रग है या लाइगेंड है, मगर नाम होता है कि वो पार्शियल है. अब इन दोनों पीछे कैरेक्टरिस्टिक को जाते हुए देखें व्हाट इज फुल एगोनिस्ट. आमतौर पर लफ्ज फुल एगोनिस्ट हम कम इस्तेमाल करते हैं, हम खाली एगोनिस्ट. एगोनिस्ट मीन कौन सा? जो फुल एगोनिस्ट है. तो अभी हमने पीछे दोनों देखी, एफिनिटी एंड एफिकेसी. तो चूंकि दोनों केमिकल बेस्ड एक्टिविटी थी, तो अगेन जो भी ड्रग मॉलिक्यूल या लाइगेंड है, ठीक है, इट मे बी अगर अंदर से प्रेजेंट फॉर फिजियोलॉजिकल एंडोजेनस सब्सटेंस, बाहर से दिया जाए ड्रग होगी, that will bind and activate the receptor to produce response which is resembling to the receptor physiological activity. तो इसमें एफिनिटी भी फुल है कि जितनी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल अंदर वाले सब्सटेंस के टू बाइंड रिसेप्टर, इसमें भी उतनी है, फुल एफिनिटी है. ये भी उस तरह भागा भागा जाएगा टू बाइंड द स्पेसिफिक रिसेप्टर जितना कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल है, एंड हैविंग द मैक्सिमम एफिकेसी, कि उतनी ही इनकी भी एफिकेसी है, सलाहियत उतनी है जितनी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पैदा करने के लिए सब्सटेंस के अंदर. तो मैक्सिमम पॉसिबल इफेक्ट ये पैदा करेगा. तो फुल एगोनिस्ट में दो कैरेक्टरिस्टिक, फुल एफिनिटी एंड मैक्सिमम एफिकेसी, या यूं कहें फुल एफिकेसी, आप यूं कह लीजिए. अब डायग्रामेटिकली अब ये देखिए कि ए फॉर एगोनिस्ट, आर फॉर रिसेप्टर, ये जब मिलता है जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है. इनसे आगे वो ट्रांसड्यूसर को के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है. ये जो एगोनिस्ट रिसेप्टर तीनों का इकट्ठा कॉम्प्लेक्स बन गया, इनकी वजह से आकर रिस्पॉन्स मिल गया. ये जो पीछे हमने देखा ना डायग्राम में 5 किस्म है. तो पहले एगोनिस्ट या ड्रग कह लीजिए, वो आके बाइंड करती है, वो रिसेप्टर को बाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स बनता है, वो दोनों इकट्ठा कॉम्प्लेक्स आगे ट्रांसड्यूसर की तरफ जाता है जहाँ पे इफेक्टर वगैरह और आगे सेकंड में मिलती है ट्रांसड्यूसर, तो उससे आगे रिस्पॉन्स मिलता है. अब यहाँ पे हमने देखा कि यूजुअली ये सारी की सारी रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है आपस में. ड्रग भी वेरी ब्रीफ टाइम के लिए ये बाइंड करता है टू द रिसेप्टर और टू द रिसेप्टर अगेन, और बड़ी जल्दी ये रिसेप्टर सिर्फ इतनी देर में कि जितनी देर में ड्रग प्रोड्यूसिंग डीपोलराइजेशन इन द मेम्ब्रेन ऑफ द रिसेप्टर, बस जो भी पैदा करती है
वो बॉन्ड टूट जाता है, ये बॉन्ड बनते हैं एक्चुअली, वो आपने बॉन्ड पढ़े होंगे इन दी योर केमिस्ट्री, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, वान डेर वाल्स फोर्स एटसेट्रा। सो उसमें से कोई भी बॉन्ड, अब उसमें से कोई वीक थे कोई स्ट्रॉन्ग थे, हमें पता है कोवेलेंट जिसमें शेयरिंग होती है दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड यूजुअली अमंग ऑल। ज्यादातर होते हैं रिवर्सिबल, जैसे वो वीक बॉन्ड होते हैं, बाइंड की, बॉन्ड ने बाइंडिंग करवाई, बॉन्ड टूट गया, बस उतनी देर में डीपोलराइजेशन हो जाती है, हमारा मसला हल हो जाता है। लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड में बनते हैं, ये बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। इसमें अमूमन एक दफा बाइंड करने के बाद जो डीपोलराइजेशन पैदा की, डीपोलराइजेशन पैदा हो गई, लेकिन ड्रग वही बाइंड, तो अमूमन हम इस कहते हैं अब ये परसिस्टेंट बाइंडिंग होगी, इसमें इरिवर्सिबली बाइंड हो जाती है। तो अब मैं मिसाल देता हूं यहाँ पे, सक्सिनोकोलिन, ये नाम से ज़ाहिर है सक्सिनोकोलिन एसिटाइलकोलिन से मिलती जुलती है। तो टेक्निकली 2 molecules of acetylcholine if combined will be known as सक्सिन। तो इसमें 2 एसिटाइल मॉलिक्यूल होते हैं, तो इनकी एफिनिटी भी तमाम रिसेप्टर्स के लिए होगी जिसके लिए एसिटाइलकोलिन की है। फिजियोलॉजी में जैसे आपने पढ़ा नर्व मसल में निकोटीन रिसेप्टर वहाँ आते हैं, तो एसिटाइलकोलिन जो रिलीज होती है नर्व एंडिंग से, तो वहाँ वाले निकोटीन रिसेप्टर को बाइंड करती हैं और वो कम्प्लेक्स बनता है, एक्टिवेट करती है और आगे एक्शन मिल जाता है। रिस्पॉन्स क्या मिलता था? कंट्रैक्शन ऑफ द skeletal muscle fiber. So succinylcholine also, when we give, it will bind to the receptor nicotinic, will produce a complex and will produce contraction of the skeletal muscle fiber. लेकिन एसिटाइलकोलिन वाला जो बॉन्ड था वो वीक था, वो टूट चुका हुआ था, एक दफा डीपोलराइजेशन के बाद वो बॉन्ड टूट चुका हुआ था। जब तक नया मॉलिक्यूल नहीं आएगा वो बाइंड नहीं करेगा, जब आएगा उतनी देर में वो जो पहले वाली डीपोलराइजेशन होगी मेम्ब्रेन, वो दोबारा रिपोलराइज हो जाएगा फॉर फर्दर न्यू डीपोलराइजेशन। ये फिजियोलॉजी में पढ़ा आपने कि जब तक डीपोलराइज मेम्ब्रेन रिपोलराइज ना हो कंटिन्यूएशन नहीं होती, ठीक है ना। अब सक्सिनोकोलिन के मसले में क्या हुआ? शुरू में डीपोलराइजेशन हुई, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नाउ देयर इज persistent presence of the molecule here, सक्सिनोकोलिन, विद द निकोटीन रिसेप्टर, तो वो परसिस्टेंट डिपोलराइजेशन हो जाएगी। अब मेम्ब्रेन को मौका नहीं मिल रहा दोबारा रिपोलराइज करने का। अब क्या होगा? शुरू में कंट्रैक्शन मिली और वो खत्म हो गई। अब चूंकि मेम्ब्रेन दोबारा रिपोलराइज नहीं हो पा रहा क्योंकि परसिस्टेंट प्रेजेंस है सक्सिनोकोलिन की कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से, तो इसलिए अगली कंट्रैक्शन ही होगी, पहले वाली कंट्रैक्शन के बाद वो खत्म हो जाएगी और नई कंट्रैक्शन आएगी नहीं, और ना ही वहाँ पे जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एसिटाइलकोलिन वो भी नहीं, क्योंकि इन रिसेप्टर के साथ तो आप एसिटाइलकोलिन ने बाइंड किया हुआ है, तो ना अंदर मौजूद नेचुरल एसिटाइलकोलिन बाइंड कर सकती है, ना वो कंट्रैक्शन कर सकती है, ना कोई ड्रग मॉलिक्यूल और। तो ग्रेजुअली इस पहली कंट्रैक्शन के बाद स्केलेटल मसल रिलैक्स हो जाते हैं। दैट इज व्हाई सक्सिनोकोलिन इज नोन एज स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। अगरचे शुरू में कंट्रैक्शन की, but later on they produce skeletal muscle relaxation। जब पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म और समझ आ जाएगा। सिमिलरली फिनॉक्सीबेंजामीन, ये एक ड्रग आप पढ़ोगे, अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर, आप फिजियोलॉजी में पढ़े होंगे ना। एडिनोसिन रिसेप्टर 2 टाइप्स के होते हैं, अल्फा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर। तो ये फिनॉक्सीबेंजामीन अल्फा रिसेप्टर को ये बाइंड करके इरिवर्सिबली ब्लॉक कर देती है। तो चुनाचे अब उन रिसेप्टर पर जो नेचुरल मौजूद नॉरपेनेफ्रिन या पेनेफ्रिन है वो बाइंड नहीं कर सकती, अपना एक्शन शो नहीं कर सकती, सो दे ब्लॉक इरिवर्सिबली अल्फा रिसेप्टर। सो ड्यू टू persistent depolarization, they ultimately there is inhibition। अब आइए पार्शियल एगोनिस्ट, जैसे मैंने पहले कहा कि ये भी केमिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। अफिनिटी थी, बाइंड किया, फुल अफिनिटी, बट ड्यू टू लेसर और सब मैक्सिमल एफिकेसी दे यूजुअली प्रोड्यूस सब मैक्सिमल रिस्पॉन्स, जिसको पार्शियल रिस्पॉन्स पे कहते हैं। अब यहाँ पे अब ये देखिए,
जो फुल एगोनिस्ट था उसका रिस्पॉन्स बिल्कुल वैसे ही था जो नॉर्मल। और मैंने पहले भी शुरू में बताया था हमारा मकसद क्या होता है ड्रग देने का, बंदे को नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लेवल पर लेके आना। नॉर्मल फिजियोलॉजी हेल्थ है, एब नॉर्मल हेल्थ नहीं है, वो डिजीज है। तो ड्रग देने का मकसद क्या है, उसको दोबारा नॉर्मलाइज फिजियोलॉजिकल लेवल पर लाना, यही काम वो ड्रग करती है। ठीक है। अच्छा, इसके मुकाबले में पार्शियल एगोनिस्ट जब ये बाइंड करती है, यहां देखिए एक वक्त में रिसेप्टर को एक ही चीज बाइंड करेगी, या बाहर से दी हुई ड्रग या अंदर से रिलीज होने वाले केमिकल लाइगैंड ट्रांसमीटर एक्सेट्रा। ठीक है। सो पार्शियल की तो खैर थी, उसने ना किया, नेचुरल ने ना किया, फुल ने कर दिया। तो फुल सॉरी मैं पार्शियल की नहीं फुल की बात कर रहा हूँ, सॉरी। तो फुल जो है दैट विल प्रोड्यूस सिमिलर इफेक्ट्स एज इन नेचुरल वाज प्रोड्यूसिंग, हमारा मसला नहीं था। लेकिन जब पार्शियल देते हैं, जब इसने बाइंड किया, अब रिसेप्टर का जो नेचुरल लाइगैंड है फिजियोलॉजिकल वो भी बाइंड नहीं कर सकेगा। फुल भी नहीं पैदा कर रही, कम कर रही है, और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल भी पैदा नहीं करने दे रही। तो उन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल के लिए भी ये बतौर ब्लॉकर काम करेगी। बल्कि इसकी मौजूदगी में अगर फुल एगोनिस्ट भी साथ दे दें और उससे भी उन रिसेप्टर को बाइंड करना हो, तो फुल एगोनिस्ट के लिए भी बतौर ब्लॉकर ही काम करेगा पार्शियल एगोनिस्ट, क्योंकि रिसेप्टर को इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, बाकियों को मौका नहीं मिल रहा। सो इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक हो गए, फुल एफिनिटी के साथ सब मैक्सिमल एफिकेसी, एंड in the presence of natural endogenous physiological substance or full agonist, they act as an antagonist. एग्जाम्पल आगे देखेंगे। इनवर्स एगोनिस्ट, another word showing inverse है एगोनिस्ट, फुल एफिनिटी, फुल एफिकेसी, लेकिन रिजल्ट क्या निकलेगा, उल्टा, इनवर्स। कि अगर फुल एगोनिस्ट कंट्रैक्शन कर रहा है, इनवर्स एगोनिस्ट उल्टा कर देगा, रिलैक्सेशन कर देगा। सो है ये एगोनिस्ट, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, फुल एफिनिटी फॉर द रिसेप्टर टू बाइंड एंड फुल एफिकेसी, पूरी स्लाइस मौजूद है। ठीक है। अब यहां पे एक लफ्ज आ रहा है, एफिनिटी ओनली फॉर द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द रिसेप्टर। चले यहीं पर अभी बता देता हूं वो क्या होता है। एक्चुअली बॉडी में हमारे जितने भी रिसेप्टर मौजूद होते हैं, ये नॉर्मल टू स्टेट में मौजूद होते हैं, आधे एक्टिव फॉर्म में, अदर इनएक्टिव फॉर्म में, या स्टेट कह लीजिए एक्टिव स्टेट और इनएक्टिव स्टेट। आधा देखिए कि दोनों इक्विलिब्रियम में मौजूद होते हैं। तो चुनाचे जो फुल एगोनिस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ जो एक्टिव स्टेट वाले उनको बाइंड करेंगे। ठीक है। और चूंकि इक्विलिब्रियम में होते हैं, अगर हम ड्रग मॉलिक्यूल और देते चले जाएंगे तो जो जो एक्टिव स्टेट वाले यूटिलाइज होते जाएंगे, इनएक्टिव वाले भी उधर में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। ठीक है। हत्ता कि आपने इतनी डोज देती, इतना ड्रग मॉलिक्यूल डाल दिया कि सारे के सारे इनएक्टिव भी कन्वर्ट हो गए एक्टिव में, क्योंकि मैं बार बार कहूँ इक्विलिब्रियम में होते हैं। इक्विलिब्रियम मकसद ये होता है कि अगर एक सेल यूटिलाइज हो रही है, दूसरी पहली वाले में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे क्योंकि फुल एगोनिस्ट की एफिनिटी सिर्फ और सिर्फ एक्टिव के लिए होती है और वो यूटिलाइज हो रहे हैं, तो इनएक्टिव वाले एक्टिव में कन्वर्ट होते जाएंगे, फिर नए मालिक उनको बाइंड कर लेंगे, वो यूटिलाइज हुए, फिर रहने वाले इनएक्टिव वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ग्रेजुअली ऑल विल कन्वर्ट। जो पार्शियल है वो ज्यादातर फुल को करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनएक्टिव को भी करते हैं। ठीक है। फुल को करके रिस्पॉन्स अपना पैदा कर लिया, इनएक्टिव को बाइंड करके उससे अपोजिट पैदा कर रहे हैं, तो वो एक किस्म का नलीफाई हो जाता है कि फुल, मैं जैसे मैंने एग्जांपल दी, वो डायलेशन करना चाहता है स्मूथ मसल, कोई ब्रोंकाई की, वेसल की, किसी भी फर्ज का मिसाल दे रहा हूं, जो एक्टिव स्टेट की वजह से डायलेशन हो रही है, इनएक्टिव से डायलेशन नहीं हो रही बल्कि कंट्रैक्शन हो रही है, तो नेट रिजल्ट क्या मिलेगा कि डायलेशन कम मिलेगी। ठीक है। इनवर्स एगोनिस्ट के साथ क्या मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ओनली
फॉर द इनएक्टिव फॉर्म को बाइंड करती है तो सारा का सारा इफेक्ट उल्टा मिलेगा जो भी होगा। अब यहाँ भी सूरत हाल फुल के मुकाबले में अपोजिट हो जाएगी कि जब इनएक्टिव वाले यूटिलाइज होना शुरू हो जाएंगे विद द इनवर्स एगोनिस्ट जो अपोजिट इफेक्ट पैदा कर रही है, अपोजिट इफेक्ट, तो जो एक्टिव फॉर्म वाले हैं वो भी इसे कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे इनएक्टिव। अब डोज बढ़ाते चले जाएं, मोर एंड मोर इनएक्टिव विल आल्सो बी यूटिलाइज, अतः कि तमाम के तमाम इनएक्टिव में कन्वर्ट हो गए और इनवर्स एगोनिस्ट ने अपोजिट इफेक्ट पैदा कर दिया। ये अपोजिट इफेक्ट अमूमन मैं मिसाल दे देता हूँ, चले आपने नाम सुना होगा बेंजोडाइज़ेपिन का, बारबिटूरेट्स के साथ हम उनका नाम लेते हैं। ये भी सेडेटिव हिप्नोटिक्स हैं, ब्रेन की डिप्रेशन करते हैं, नींद भी लाते हैं, एंजाइटी भी ठीक करते हैं वगैरह वगैरह। तो अगर इंसिडेंटली या एक्सीडेंटली उसकी टॉक्सिसिटी हो जाए ओवरडोज की वजह से, सुसाइड अटेम्प्ट के लिए लोग खा लेते हैं उसको, ठीक, या किसी भी वजह से, तो उनके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हमारे पास कोई फ्लुमानाजिल होते तो उसका एंटागोनिस्ट है, बीटा कार्बोलिन्स भी जो है, बीटा कार्बोलिन खासतौर पर वो इनवर्स एगोनिस्ट हैं, वो उसको इनएक्टिव फॉर्म कन्वर्ट करके उसके इफेक्ट को नलीफाई करते हैं। अब आज ये स्पेयर रिसेप्टर, जैसे कि नाम से जाहिर, ये वो रिसेप्टर हैं जो स्पेयर पड़े हुए हैं, ठीक है। कुछ नेचुरल रिसेप्टर टोटल मौजूद होते हैं जो कि इन्वॉल्व हो रहे हैं इन दी एक्टिविटी, लेकिन ये वो इन्वॉल्व तो नहीं है लेकिन पड़े हुए हैं। अगर जो नेचुरल वाले खत्म हो जाएंगे तो ये वाले मैदान में आ जाएंगे टू पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्स। सो दीज आर द रिसेप्टर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर टिश्यू इन एक्सेस ऑफ द रिसेप्टर actually needed to elicit the maximum balance. In other words, spare receptor is said to exist if the maximal drug response is obtained at less than maximal. अब चले, अब ये शायद समझना है फिक्रा, पहले वाला समझ लीजिए कि नेचुरली नॉर्मली हम जो अंदर से रिलीज होने वाला फिजियोलॉजिकल सब्सटेंस लाइगेंड है या बायोलॉजी की ड्रग है, तो वो उन्हीं रिसेप्टर को बाइंड करते हैं जो नेचुरल मौजूद है। लेकिन कुछ टिश्यू में, याद करें सारे टिश्यू में स्पेयर रिसेप्टर नहीं होते, कुछ में होते हैं, ठीक है। मसलन मैं जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, हार्ट में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये इन्वॉल्व कब होंगे, जब किसी वजह से असल वाले सारे यूटिलाइज हो जाए। अब मसलन आप एक काम करें कि जो नेचुरल मौजूद का ब्लॉक कर दें सारे, मतलब हार्ट में मौजूद है, वी नो इन हार्ट बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट, हमको ऐसे बीटा ब्लॉक कर दें जो उसको लंबे अर्से तक ब्लॉक रखे, फ्री ना होने दें। तो आप ये देखेंगे अभी भी कि वो स्पेयर रिसेप्टर मौजूद होंगे, तो फिर दोबारा अगर आप कोई एगोनिस्ट देंगे रिस्पांस फिर भी मिल जाएगा आपको थोड़ा बहुत स्पेयर रिसेप्टर के साथ, ठीक है। फिनॉक्सीबेंजामीन पीछे देखा हमने, परमानेंटली ब्लॉक कर दिया अल्फा रिसेप्टर को, ठीक है। वो नॉर्मली वेसल्स वगैरह पे मौजूद होते हैं, तो वेसल नॉर्मली उस पर नॉरएपिनेफ्रिन को रिस्ट्रिक्शन कर रही है। जब ब्लॉक हो जाएंगे अल्फा रिसेप्टर ड्यू टू फिनॉक्सीबेंजामीन, तो आप वेसोडायलेशन हो जाएगी। लेकिन अगर वो नॉरएपिनेफ्रिन अंदर से तो जितनी है उतनी है, अगर बाहर से हम उसको अल्फा एगोनिस्ट दें तो आप देखेंगे थोड़ी सी वेसोडायलेशन फिर मिल जाएगी। वो क्यों मिलेगी? ड्यू टू स्पेयर रिसेप्टर। अब एक और टर्मिनोलॉजी EC50 एंड KD। E effective C concentration, effective concentration क्या है? It is that concentration of the drug that produces 50% of the maximum response. जितना भी किसी ने रिस्पॉन्स पैदा करना है मैक्सिमम, उसका 50% पैदा करने के लिए जितनी डोज हमें चाहिए, जितनी अंदर कंसंट्रेशन चाहिए, दैट इज EC50। अब जाहिर है कि रिसेप्टर को बाइंड करेगी तो वो इफेक्ट शो करेगी ना, उसके लिए लहदा टर्मिनेशन KD हमने ढूंढी। जितने भी अवेलेबल रिसेप्टर हैं जिनसे मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिलता है, अगर उसके 50% रिसेप्टर ऑक्यूपाई हो गए, ठीक है ना, वो कंसंट्रेशन जो है ना वो KD होगी। सो KD दैट कंसंट्रेशन ऑफ द फ्री ड्रग एट विच 50% ऑफ द मैक्सिमम रिसेप्टर बाइंडिंग अकर। तो अगर स्पेयर रिसेप्टर ना हो तो मोमन ये एक जितनी होती है EC50 भी और KD50, क्योंकि जितने रिसेप्टर थे उतना इफेक्ट मिल गया।
उधर स्पेयर रिसेप्टर में होता है क्योंकि जितने रिसेप्टर थे वो उससे रिस्पॉन्स मिल गया, लेकिन अभी भी क्योंकि स्पेयर रिसेप्टर मौजूद हैं उनसे मजीद रिस्पॉन्स मिल सकता है। तो इसलिए अब EC50 कब की ख़त्म हो गई, क्योंकि वो तो मैक्सिमम को शो कर रही थी, जो एक्चुअल वाला था उसमें थे स्पेयर रिसेप्टर वाला इफेक्ट तो एलिमेंट शामिल ही नहीं था, तो चुनाचे उसमें अमूमन डिफरेंस आ गया। तो जैसे मैंने कहा, इफ नो स्पेयर रिसेप्टर प्रेजेंट EC50 एंड KD आर आइडेंटिकल, एक जैसे होंगे। और जब अगर प्रेजेंट मौजूद है जैसे कि हार्ट में मौजूद होते हैं, तो यूजुअली क्योंकि रिसेप्टर ज़्यादा तादाद मौजूद है तो KD ज़्यादा हो, ठीक है। सो EC50 इज लेस देन KD, तो स्मॉलर डोज इज नीडेड देन द टोटल नंबर ऑफ रिसेप्टर अवेलेबल। क्यों? बेशक भले मौजूद है लेकिन इफेक्ट जो हमें चाहिए था वो तो मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। यूजुअली सेल की जो सेंसिटिविटी है या टिश्यू की सेंसिटिविटी है टू पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट, वो सिर्फ एफिनिटी पे डिपेंड नहीं करती, यानी कि KD पे डिपेंड नहीं करती, बट आल्सो ऑन द डिग्री ऑफ स्पेयरनेस, कि द टोटल नंबर ऑफ स्पेयर पैटर्न कितने मौजूद हैं विद द नंबर एक्चुअली नीडेड टू इलिसिट अ मैक्सिमम रिस्पॉन्स। आई मीन मामूली से मौजूद है या ठीक ठाक मौजूद है, अकॉर्डिंगली वो रिसेप्टर का रिस्पॉन्स हमें मिलता चला जाएगा। Now let's see, this is the response or changes in the, for example here heart rate में तब्दीली हम देख रहे हैं। अब कोई और देख लीजिए, कंट्रैक्शन देख लीजिए, रेस्पिरेटरी रेट देख लीजिए, कोई भी रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं। अब यहाँ जैसे हार्ट रेट में देखा गया, अब बीट पर मिनट इधर देखा गया, कितनी डोज से कितनी बीट्स मिली, तो मैक्सिमम रिस्पॉन्स यहाँ पे देखें, वो मैक्सिमम रिस्पॉन्स के साथ मैक्सिमम डोज के साथ मिलेगा। लेकिन जितनी डोज के साथ जो 50% रिस्पॉन्स मिला है वो EC50 कह रहे हैं। तो E max is maximum drug, EC50 concentration of drug producing 50% of the maximum response। तो E तो सिंपली मेरे होता है इफेक्ट किसी भी कंसंट्रेशन में मिले, ठीक है, और C होती है फॉर कंसंट्रेशन। अब दो रिस्पॉन्स का भी मीन्स रिस्पॉन्स एंड डोज की आपस में जो कर्व थी वो रिलेशनशिप, वो हमने एक कर्व की शक्ल में शो किया। सेमी लॉ ट्रांसफॉर्मेशन डोज रिस्पॉन्स डाटा इन ए सिग्मॉइड का, कि दोनों साइडें कंसंट्रेशन और रिस्पॉन्स दोनों नहीं, कोई एक साइड। यूजुअली हम डोज को लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं, रिस्पॉन्स वैसे ले लेते हैं जैसा है, तो यूजुअली सिग्मॉइड शेप शक्ल बनेगी। ये चेंजेस इन द हार्ट ऐसी ले ली, इसको हमने लॉग, तो इसलिए सेमी लॉग कहलाया। दोनों होता तो फुल लॉग बन जाता, ठीक है, इधर वाले भी होती है। अब यहाँ पे हमने देखा उसके मुकाबले में एक तो ये कि शुरू में बड़ी स्लोली आप डोज बढ़ाते चले जाएं, स्लो चेंजेस आ रही हैं, फिर एकदम आई, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जहाँ तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितनी कंसंट्रेशन दे रहे हैं उतना रिस्पॉन्स, जहाँ तक, फिर फर्दर ये रफली अबाउट 75 to 85, ये रफली अबाउट 25 तक कह लीजिए या उससे लेस देन कह लीजिए, तो मैक्सिमम तो पहुंचे फिर स्लो हो जाती है। तो एंड्स स्लो होते हैं और सेंटर वाला पोर्च एग्जैक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, कि EC50 विल शो दी 50% ऑफ द रिस्पॉन्स। अभी देखिए ये सेमी लॉक होगी और सिग्माइड एच शेप है ना, सिग्माइड कहलाती है। अब एक और लफ्ज आपको हो सकता है कंफ्यूज करे, पोटेंसी। नाउ दिस वर्ड मैंने पहले भी जिक्र किया था किसी लेक्चर में, आपको याद नहीं होगा, कि पोटेंसी बेसिकली वो नहीं है जो आप पहले समझते रहे कि बड़ी हाई पोटेंट है, लो पोटेंट, नो, एक्चुअली ये डोज रिलेटेड चीज है। सो इट इज द एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड इफेक्ट विद द मिनिमम पॉसिबल डोज, कम से कम डोज से जो रिक्वायर्ड इफेक्ट मिलता है वो उस पर्टिकुलर ड्रग की अपनी पोटेंसी होगी। मैंने मिसाल दी थी, आपको याद है, मॉर्फिन और हेरोइन की,
तो हीरोइन जो है 80 टाइम मोर पोटेंट देन मॉर्फिन, मैंने बताया था। क्यों? उसकी जो डोज रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज ऑफ दिस मॉर्फिन 80 टाइम लेस है। बहुत थोड़ी मिकदार में उतना रिस्पॉन्स मिल जाएगा जैसे कि नॉर्मल डोज मॉर्फिन से मिलता है। ठीक है, पोटेंसी यूजुअली जो हाई पोटेंसी वाली हमने देखा है कि उनकी एफिनिटी भी हाई होती है ड्रग के साथ। तो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द रिसेप्टर इवन लो कंसंट्रेशन में भी ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं, बाइंड कर लेते हैं। नाउ हम तीनों को देखते हैं, एक पोटेंसी, एफिकेसी है, मैक्सिमम इफेक्ट। पोटेंसी तो हो गई, जैसे मैंने कहा, एक मिनिमम पॉसिबल डोज के साथ जो रिक्वायर्ड इफेक्ट मिला। एफिकेसी होगी मैक्सिमम पॉसिबल इफेक्ट शो करने का इजहार। ऑर्डर ऑफ पोटेंसी 4 ड्रग देखी। ए ने जो रिक्वायर्ड इफेक्ट फर्स्ट एक जैसा ही है, देखें ए बी सी डी, रिक्वायर्ड इफेक्ट ये था, सब ने एक जैसा हासिल किया, लेकिन हर एक डोज मुख्तलिफ रिक्वायर्ड। ए ने थोड़ी डोज से इफेक्ट मिल गया, बी ने उससे ज़्यादा डोज ली, सी ने उससे ज़्यादा डोज ली, डी ने सबसे। तो अब देखिए, ए इज हाईली पोटेंट, ठीक है, बी इज लेस देन ए, सी इज लेस देन बी एंड ए ऑब्वियसली, एंड डी इज लेस देन ऑल थ्री। अब अगर डिफरेंस देखना पोटेंसी और एफिकेसी में, पोटेंसी तो ये हो गई, डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनी टारगेटेड इफेक्ट एट अ रिक्वायर्ड इफेक्ट, जबकि एफिकेसी मैक्सिमम पॉसिबल इफेक्ट। नो अब ये देखिए, इनका और इनका मैक्सिमम पॉसिबल एक जैसा है, जबकि बी का इन दोनों से कम है और डी का सबसे कम है। ठीक है, सो ED 50 तो हो जाएगी वो डोज जिसे हर एक अपना अपना 50% रिस्पॉन्स मिला। ये दोनों का सी और डी का एक जैसा रिस्पॉन्स मिल रहा था, वो तो हो गया, लेकिन इनका कम है तो इनकी ED 50 या EC 50 कह लीजिए, जो भी है वो बाकी मुकाबले में कम हो। सो पोटेंसी के हवाले से तो हमने देख लिया कि वो तो हम कह सकते हैं A इज द मोस्ट पोटेंट, B इज लेस देन A, C इज लेस देन B एंड C, ये देखिए, एंड D इज लेस देन ऑल A B C। जबकि एफिकेसी में देखें A एंड C आर इक्वल, अब ये देखिए, बट B and D they are actually having less efficacy. ठीक है, now the second type of dose response, now this is the quantal dose response curve. The other name of this is frequency of distribution. Here actually the percentage of population of subjects, they may be human beings, they may be animals, or anything. So percentage of that subject responding to any drug, that is displayed and that is representing, usually it is a bell shaped. And in this particular example, for example, we have checked the decrease in the systolic blood pressure, for example, by 10 millimeters mercury. कि कौन कौन से सब्जेक्ट, हम पेशेंट ही ले लेते हैं, ठीक है, तो कितने पेशेंट ने 10 मिलीमीटर मर्करी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉल करवाने के लिए उनको कितनी डोज की जरूरत थी किसी भी पर्टिकुलर ड्रग की, A B C कोई नाम दे दीजिए। फॉर एग्जांपल 1 मिलीग्राम काफ़ी थी ये इतनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के लिए, लेकिन इतनी पॉपुलेशन के लिए जो रिक्वायर्ड डोज वो 10, इतनी पॉपुलेशन के लिए 20, अब ऑनवर्ड। अब देखें, ताकि दिस मच पॉपुलेशन जो जहाँ मैक्सिमम मिल गया आगे 50 मिलीग्राम काफ़ी है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी पॉपुलेशन है जो इससे भी ज़्यादा डोज चाहिए थी टू गेट दिस 10 मिलीमीटर मर्करी ऑफ लोअरिंग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। 60 मिलीग्राम, 70 मिलीग्राम, 80, 90, ताकि अब देखिए कहाँ 1 मिलीग्राम से रिस्पॉन्स कहाँ से आके 100 मिलीग्राम फिर आकर कहीं ये इफेक्ट मिला हमें, 10 मिलीमीटर डिक्रीज इन दिस ब्लड प्रेशर। तो इनको जब हम इस प्लॉट करते हैं तो एक बेल शेप किस्म की हमें ग्राफ में मिला दीजिए हाइट्स को,
एक बेल शेप, ये दिस इज द क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व। इन दिस परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन रिस्पॉन्स हम ऑब्जर्व करते हैं। अब ये देखिए परसेंटेज ऑफ, अब जिसमें एक पेशेंट था, 5 पेशेंट ने 8, 11, 13, 17 पेशेंट, 14, 11, 9, मैक्सिमम पेशेंट ऑलवेज हमेशा वो सेंटर में होते हैं, ठीक है ना, एक्सट्रीम पर कम से कम होते हैं, ठीक है। यहाँ सिर्फ एक पेशेंट ने रिस्पॉन्ड किया, 4 पेशेंट ऐसे थे जिनको 100 मिलीग्राम की जरूरत पड़ी, ठीक है। अब 100% कंप्लीट सारे के सारे मरीज नो रिस्पॉन्स शो कर दिया, सब में अब 10 मिलीमीटर मरकरी सिस्टम प्रेशर डिक्रीज हमें मिल गया। सिर्फ फर्क क्या हुआ, डोजेज रिक्वायर्ड मुख्तलिफ थी, हर एक में मुख्तलिफ डोज थी, ठीक है, और वो वेरी करती रही फ्रॉम 1 मिलीग्राम टू 100 मिलीग्राम, ठीक। किसी में और एग्जाम्पल में इससे भी ज्यादा कम या ज्यादा हो सकती है, ठीक है। अनदर टर्मिनोलॉजी, स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम देखा है कि एक्चुअली ये बेसिकली हम और अंदाज में भी ड्रग की मेजर करते हैं, ठीक है, जो कि थेराप्यूटिक इंडेक्स कहलाता है। तो बेसिकली थेराप्यूटिक इंडेक्स होता ही क्या है कि इट्स द मेजर ऑफ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और वो यूजुअली हम मेजर करते हैं कि भी कितने परसेंट ने इफेक्ट डोज ने दिया और कितने परसेंट डोज या कितने मिलीग्राम या जो भी लेवल आपने देख रहे हैं उसमें टॉक्सिक या लीथल इफेक्ट शो किया, उनकी रेशो के साथ कैलकुलेट करते हैं। लेकिन डेफिनेशन में हम यही कहते हैं कि थेराप्यूटिक इंडेक्स इज द मेजर ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ ड्रग। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड भी होना चाहिए, स्टैंडर्ड हमारा बड़ा ऊंचा है, वो क्या, अब TXD टॉक्सिक डोज, वो सिर्फ तमाम पेशेंट में से एक में मिले, उसको भी -1 करके 100 से मल्टीप्लाई कर दे ताकि परसेंटेज मिल जाए, और इफेक्टिव डोज 99 में मिले। तो जितनी डोज 99 में मिली वो एक तरफ, और जो एक में मरीज में टॉक्सिक डोज मिली वो कैलकुलेट कर लें, -1 करके मल्टीप्लाई करें तो आपका स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल आएगा, ठीक है। अनदर टर्मिनोलॉजी जो पीछे रह गई थी, सुपर इन्फेक्शन। इन्फेक्शन तो जाहिर है माइक्रोबैक्टीरिया काज करते हैं, लेकिन सुपर इन्फेक्शन क्या होगी, ये नहीं है कि इन्फेक्शन के ऊपर इन्फेक्शन। अब यूं कह लीजिए कि एक ऐसी इन्फेक्शन जो नॉर्मली नहीं होती, मखसूस हालात में उसकी भी इन्फेक्शन मिल जाए, वो सुपर इन्फेक्शन। ये कौन से मखसूस हालात है, अब उसको देखिए कि एक्चुअली इट्स इन्फेक्शन ऑफ द सम अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो मौके की तलाश में थे, कब मौका मिला, मसल को रेजिस्टेंस स्ट्रेन ऑफ एक मखसूस, आप पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी में, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल या कैंडिडा एल्बिकॉन वगैरह, इनके रेजिस्टेंस स्ट्रेन की इन्फेक्शन मिलती है, कब, जब उनको मौका मिलता है, वो उस वक्त कहलाते हैं अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रोनिज्म। वो कब मिलता है, ड्यू टू अल्टरेशन इन द नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ GIT या वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या GIT। रिमेंबर इन दिस 3 साइड्स, GIT, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड जेनिटल, नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा। ये हेल्दी बैक्टीरिया, ये हेल्दी क्या मतलब है, ये किस्म का प्रोबायोटिक इफेक्ट होता है, ये प्रोटेक्ट करते हैं पेशेंट को या पर्सन को फ्रॉम इन्फेक्शन ऑफ कॉमनली प्रेजेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो जब तक वो नॉर्मल बैक्टीरिया मौजूद है, ठीक है भी वो भी बैक्टीरिया ही है, लेकिन दे आर प्रोबायोटिक हैं, जबकि दूसरे बैक्टीरिया जो होते हैं वो तो डिजीज प्रोड्यूसिंग होते हैं। अब होता क्या है, बाज़ औक़ात कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम मीन्स कि मल्टीपल टाइप्स की माइक्रोनिज्म जो होते हैं उनके अगेंस्ट वो इफेक्टिव होते हैं, सिर्फ एक किस्म नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, मल्टीपल टाइप्स। ये आप माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे, हम भी पढ़ाएंगे आपको फार्माकोलॉजी में, फिर नहीं हो। एक एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन, जो आपने बायोकेमिस्ट्री में आपने नाम इसका पढ़ा था, क्लोरोफेनिकोल, ये सारे के सारे
एंटीबायोटिक्स, एंटीबैक्टीरियल्स हैं। लेकिन ये है ब्रॉड स्पेक्ट्रम कि इनका इफेक्ट बेशुमार टाइप्स के मैकेनिज्म दे आर यूज्ड। वो क्या करते हैं, वो उन तमाम माइक्रोऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है, लेकिन साथ वो नॉन बैक्टीरिया को भी बतौर बैक्टीरिया लेते हैं, तो इनको भी वो किल कर देते हैं, जबकि इनका तो हेल्दी इफेक्ट था। तो जब ये नॉन बैक्टीरिया खत्म हो जाता है ड्यू टू यूज ऑफ दीज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल एजेंट, तो उनका जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट था, जो हेल्दी इफेक्ट था, वो खत्म हो जाता है। तो चुनाचे उस वक्त ये जो अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रोनिज्म है, इनको मौका मिल जाता है अपनी इन्फेक्शन शो करने का। तो इनकी इन्फेक्शन होगी वो सुपर इन्फेक्शन क्या है, जैसे क्लासरूम डेफिसिट। अब आप पढ़ेंगे ये एक किस्म का लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मेम्ब्रेन के ऊपर एक मेम्ब्रेन बनाते थे, बड़ा लंबा सा मेम्ब्रेन, जो प्रॉपर मेम्ब्रेन तो लेकिन मेम्ब्रेन लाइक, इसलिए उसे सूडो मेम्ब्रेन कहते हैं। इन्फ्लेमेशन काज कर देते हैं उसकी कोलोन की, और उस पर एक मेम्ब्रेन बन जाता है, ये बैक्टीरिया बना देते हैं। इसी तरीके से कैंडिडा अल्बिगम ये बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन है। आपने देखा होगा बाद बच्चों के या बड़ों के, खासतौर पे मुंह के अंदर एक वाइटिश स्पॉट्स या पूरी अंदर वाली जो चीक्स हैं वो वाइट हो जाती हैं, वो एक्चुअली फंगल इन्फेक्शन होती है। इसकी वजह से कैंडिडा अल्बिगम मीन्स वाइट, नाम तो दिया गया है, इसलिए अल्बिकान्स इटालियन वर्ड में मीन्स के वाइटिश प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब इंशाल्लाह हम नॉर्मल जो है वो यूज करेंगे। जज़ाकल्लाह, वालेकुम अस्सलाम।